Hello children, today in the part 2 of modals we will discuss about the usage of will and would. Basically there are three main differences in using will and would. So let's start. The first situation where we use these two modals are, we'll start with will first. We use will to express the predictions, decisions in immediate future and promise. तो will का इस्तेमाल हम क्या करते हैं प्रिडिक्शंस के लिए, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जहां पर हमने कुछ प्रिडिक्ट करना है, कुछ भविष्यवाणी करनी है, उस वक्त जो है हम will का इस्तेमाल करते हैं. डिसीजन इन इमीडिएट फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर में मीन्स अभी आने वाले नेक्स्ट ही वक्त में हम क्या करने वाले हैं, जब हम उस बात की बात करने वाले होते, अगेन वी यूज will. एंड प्रॉमिस, द थर्ड सिचुएशन इज प्रॉमिस, जब हम किसी चीज़ का वादा करते हैं उस टाइम पर भी हम क्या करते हैं will मोडाल का इस्तेमाल करते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई विल बी इन शिमला बाई 11 AM. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रिडिक्शन. आप भविष्यवाणी कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं 11 बजे तक जो है शिमला पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी. सो हियर वी आर यूजिंग will as modal. Second situation is immediate future. See, I'm not hungry, so I'll just have an orange. मुझे भूख नहीं लगी है तो मैं बस एक ऑरेंज ही खाऊंगा या खाऊंगी. So immediate future means आप next future में क्या करने वाले हो, you are going to eat some orange because you are not feeling hungry, right? And the third situation is promise. I will meet you tomorrow. मैं तुम्हें कल मिलूंगा. So you are making some promise. आप एक वादा कर रहे हैं किसी से कि आप उनसे कल मिलेंगे, ठीक है? So while the situations where we discuss about the predictions, decision in the immediate future and promise, we use the modal will, dear children. Now let us discuss about the would, the use of would. Would, as we all know, it is the past tense of or the past form of will, right? So we use would to express past conversation. When we have to talk about the things which had happened in the past, जब हम ऐसी किसी बात के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि भूतकाल में बीते हुए वक्त में हो गई है, तो क्या होता है उस टाइम पे हम क्या करते हैं, we use the modal would at that time. Let us come to the examples. We thought we would be in Shimla by 11 AM. हमें लगा कि हम 11 बजे तक शिमला पहुंच जाएंगे. हमें ऐसा लगा था, पास्ट में ऐसा लगा था कि हम क्या करेंगे 11 बजे तक शिमला पहुंच जाएंगे. So we use would here. I wasn't hungry, so I said I would just have an orange. मुझे भूख नहीं लगी थी तो मैंने ये कहा कि मैं बस एक ऑरेंज ही खाऊंगा. सो पास्ट की बात करें कि पास्ट में मुझे भूख नहीं लग रही थी तो उस टाइम पर मैंने ये कहा था कि मैं सिर्फ एक ऑरेंज खाऊंगा. थर्ड एग्जाम्पल, आई सेड आई वुड मीट हर टुमारो. मैंने ये कहा कि मैं उससे कल मिलूंगा. अगेन पास्ट कन्वर्सेशन, पास्ट सिचुएशन, मैंने उसको ये कहा था कि मैं उससे कल मिलूंगा. So dear children, I hope the use of will and would is clear to you people, right? Now let us discuss further. Now here is the second situation, dear children, where we use these modals will and would, and the second situation is the conditionals. Conditionals क्या होते हैं, शर्त, जहां पर आप कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, कुछ शर्त लगाते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो वो ऐसा करेंगे, अगर ये हुआ तो ऐसा होगा, है ना? तो उसको बोलते हैं conditionals, ठीक है? Now let us discuss about the use of will first. Sentences which have conditions and its result. So मैंने आपको बताया कि where do we use will modal, where we just frame some sentences with some conditions or conditionals, right? Let us discuss the examples here. If it rains tomorrow, I'll bring umbrella. अगर कल बारिश होती है तो मैं छाता लेकर आऊंगा. I will bring umbrella. If it rains tomorrow, अगर कल बारिश होती है तो. So this is a real situation. It is a real situation कि भाई अगर बारिश होती है तो बिल्कुल हम छाता लेकर जाएंगे, है ना? So it is talking about the real situation. Now second example, if you study hard, your grades will improve. अगर तुमने ठीक से पढ़ाई की तो तुम्हारे grades improve होंगे. This is again a real situation, a possible situation कि अगर आप ठीक से पढ़ाई करोगे तो आपकी grades क्या होंगी? The grades will surely improve. In the third situation, if you eat well, you will be healthy. अगर तुम ठीक से खाओगे then you will be healthy, तो तुम healthy हो जाओगे. So this is again talking about the real situation. So dear children, you must have observed here
that we use the modal will when we talk about the real situations or the possible situations. हम will का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम ऐसी situation के बारे में बात करते हैं जो कि reality में possible है, पॉसिबल सिचुएशन है. यहाँ पर रेन होगी तो छाता होगा, पढ़ाई करोगे तो ग्रेड्स आएंगे, अच्छा खाओगे तो हेल्दी रहोगे, right? So this kind of situations where we talk about the, or this kind of sentences where we talk about the real situations, it is called first conditionals, right? So it is quite clear that we use the modal will with the first conditionals, dear children, right? First conditional means where we talk about the real situations, right? Now let us discuss about the would. Again, would is again used with the conditionals, no, that sentences where we talk about some conditionals. कुछ शर्त लगाकर हम कुछ बात करते हैं, अगर लगाकर, if, अगर ऐसा होता है तो, है ना. सो अब इसमें देखो कैसे यूज होता है कंडीशनल्स का वुड में कैसे यूज होता है. इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड मेक एजुकेशन फ्री फॉर ऑल. तो ये क्या सिचुएशन है? कहते अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं एजुकेशन जो है सबके लिए फ्री कर देता. ठीक है. सो आई वुड मेक एजुकेशन फ्री इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर. तो ये क्या, ये रियल सिचुएशन नहीं है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है. वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो बस इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ऐसा करता, या अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूंगा तो मैं ऐसा करूंगा. वुड, राइट. एंड सेकेंड सिचुएशन अगेन, इफ यू स्टडीड हार्ड योर ग्रेड्स वुड इम्प्रूव. अगर तुम ठीक से पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी ग्रेड्स इम्प्रूव होंगी. तो ये भी इमेजिनरी सिचुएशन है, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है उस पर्सन पे कि वो स्टडी करेगा या नहीं करेगा. तो बस इमेजिन किया जा रहा है कि अगर तुम ठीक से पढ़ोगे तो तुम्हारे ग्रेड्स इंप्रूव होंगे. सो दिस इज अगेन टॉकिंग अबाउट द इमेजिनरी सिचुएशन. In the third sentence, if you ate well you would be healthy. अगर तुमने ठीक से खाया तो तुम हेल्दी रहोगे, राइट. अगेन इमेजिनरी सिचुएशन, क्योंकि उस पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो ठीक से खाना खाता है या नहीं खाता है. तो इमेजिन किया जा रहा है कि अगर तुम ठीक से खाओगे तो तुम हेल्दी रहोगे. सो डियर चिल्ड्रन, द यूज ऑफ वुड, द मोडाल वुड इज मेड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इमेजिनरी सिचुएशन. हम ऐसी सिचुएशन जो कि इमेजिनरी सिचुएशन है ना, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं. और ऐसी सिचुएशन जिसमें इमेजिनरी सिचुएशंस की, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं उसको हम कहते हैं सेकंड कंडीशनल्स. So with would we use with second conditionals we use would, and with the first conditionals we use will. So you need to remember, dear children, here with will it is possible. will कहाँ लगाना है? जहाँ पर situations क्या हो, possible हो. and with would it is not possible. और जहाँ पर ऐसी situation जो कि impossible है, imaginary है, possible नहीं है ऐसी situation, तो वहाँ पर हमने क्या करना है, would का इस्तेमाल करना है. And this kind of sentence is called second conditionals. जहाँ पर imaginary situations होती हैं वो क्या होती है, secondary conditionals होती हैं, और second conditionals कहते हैं. और जहाँ पर possible होती है उसको हम क्या कहते हैं, जहाँ पर situations possible होती है उसको हम कहते हैं first conditionals, है ना. So I hope it is clear to you people, right? Now third conditionals, let us discuss about the usage of will and would in the third conditionals. Now dear children, third conditionals क्या होती है? ऐसी कंडीशनल्स होती हैं थर्ड कंडीशनल्स जहाँ पर क्या होता है, पास्ट को, है ना, एक डिफरेंट पास्ट के बारे में सोचा जाता है कि एक पास्ट तो है पर कैसा पास्ट है, वो डिफरेंट पास्ट है. कि अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता जो कि पॉसिबल नहीं था, पर अगर हो गया होता तो ये चीज़ होती, है ना. तो डिफरेंट पास्ट की बात करता है क्या, कौन, ये थर्ड कंडीशनल. किसकी बात करता है, डिफरेंट पास्ट की बात करता है कि पास्ट में अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो ये होता. ठीक है. एंड द थर्ड कंडीशनल्स डियर चिल्ड्रन क्या करते हैं, वी डू नॉट यूज विल, है ना. व्हाइल टॉकिंग अबाउट द थर्ड कंडीशनल्स वी डू नॉट यूज विल, वी ऑलवेज यूज वुड हियर, right? Now let us discuss about the examples. If I had gone to the dance class I would have become a great dancer. देखो पास्ट सिचुएशन, कुछ मैंने कहा डिफरेंट पास्ट की बात करता है. कहता है इफ आई हैड गॉन टू द डांस क्लास, अगर मैं पास्ट में डांस क्लास जाता तो मैं आज बहुत बड़ा डांसर होता. तो डिफरेंट पास्ट की बात कर रहे हैं. वो पास्ट में क्या था, वो उसने डांस क्लास नहीं लगाई थी और अच्छा डांसर नहीं बना. तो इमेजिन कर रहा है कि काश मैं पास्ट में क्या होता, डांस क्लास ज्वाइन करता तो मैं एक अच्छा डांसर आज होता. तो ये होता है थर्ड कंडीशन, जहां पर आप डिफरेंट पास्ट की बात करते हो, ऐसा पास्ट जो कि नहीं था पर आप उसको इमेजिन कर रहे हो. सेकेंड एग्जाम्पल, इफ यू हैड स्टडीड हार्ड योर ग्रेड्स वुड हैव इम्प्रूव्ड. अगर काश तुमने अच्छे से स्टडी की होती पास्ट में तो तुम्हारे ग्रेड्स इंप्रूव हो गए होते. अगेन व्हाट इज दिस, डिफरेंट पास्ट की बात कर रहे हैं, थर्ड कंडीशंस की बात कर रहे हैं. ऐसा सिचुएशन जो कि पास्ट में नहीं था, बस उसके बारे में हम इमेजिन करें कि काश ऐसा पास्ट होता. क्या होता, अगर तुम ठीक से पढ़ते हाँ पास्ट में तो तुम्हारी ग्रेड्स जो है वो जरूर इंप्रूव होती.
इफ यू हैड ईटन वेल यू वुड हैव बीन हेल्दी, अगर तुमने ठीक से खाना खाया होता पास्ट में, यू वुड हैव बीन हेल्दी, तो तुम हेल्दी होते, राइट. सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर वी टॉक अबाउट द डिफरेंट पास्ट, है ना, ऐसा पास्ट जो कि है नहीं पर हम उसको इमेजिन करते कि काश पास्ट में ऐसा हुआ होता. ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, द सेंटेंसेस इन थर्ड कंडीशनल्स. एंड डियर चिल्ड्रन, विद द थर्ड कंडीशनल्स वी ऑलवेज यूज वुड, वी नेवर यूज विल. Okay, I hope this the usage of will and would is clear to you people, and that's all for today. Thank you so much for watching. So dear children, one more usage of will and would is left here. We'll discuss about this usage of will and would here also. This is the last situation, third situation, where we discuss about the, or where we use these two modals, will and would. So it is the polite expression, dear children. The third situation is the polite expression. Politely हमने कोई चीज़ अपने politely, बहुत ही humbly, बहुत ही politely तरीके से जब हमने बात करनी होती है, रिक्वेस्ट करना होता है, कोई परमिशन लेनी होती है, कोई ऑफर देना होता है, पोलाइटली, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, वी डू नॉट यूज़ विल, हम विल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उस वक्त क्या करते हैं, वुड का ही इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो. वुड यू माइंड इफ़ आई लेफ्ट लिटिल अर्ली टुमारो, अगर मैं कल सुबह जो है, मान लो ये कोई एम्प्लॉय है, ऑफिस का एम्प्लॉय है और अपने बॉस से कह रहा है कि आपको कहीं बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं कल थोड़ी जल्दी चला जाऊंगा, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ परमिशन, बहुत पोलाइटली वो परमिशन ले रहा है. एंड नाउ द थर्ड दिस एग्जांपल इज, वुड यू लाइक सम मोर शुगर इन योर टी, ऑफर, है ना, आप ऑफर कर रहे हो कि आप कह रहे हो कि आप अपनी चाय में थोड़ा और चीनी लेना पसंद करेंगे, right? So in these polite expressions, dear children, while you are doing some, you are making some request, you're taking some permission or making some offer, right? In all these situations, what do? You use would, आप would का इस्तेमाल करते हो. And always just keep this thing in your mind that these are some fixed expressions where you only use would, right? ये कुछ fixed expressions हैं, है ना, जहाँ पर आप क्या करते हैं, would का ही इस्तेमाल करते हैं.